Assalamu alaikum everyone, and this is Dr. Anam Safar with you. And today we are going to discuss about the subject of healthcare management. And under the subject of healthcare management, our today's topic is responsibilities of the manager for patient care. Today's subject's learning objective or today's lecture's learning objectives are that you will be able to know that how a manager can control the best quality in the healthcare system and how the manager can give the good clues to the employees for the best patient satisfaction, which is ultimately the consumer who can advise you and who can give you the further revenue. Responsibilities for the patient care. The content of the lectures are quality care in the healthcare organizations, patient satisfaction, patients' rights and responsibilities, and a manager's responsibility in this context. What is the quality care in healthcare organizations? The concept of quality has not transitioned easily to the healthcare system from the other type of businesses because there is a difference between the other type of businesses and the healthcare system. The challenges are different. So the WHO has defined the quality of care as the extent to which healthcare services provide to individual and patient population improve desired health outcomes. And what are these desired health outcomes? We will discuss in further lecture. In order to achieve this, the healthcare must be safe, must be effective, timely, efficient, equitable, and people centered. How can the quality care safe? It means that delivering a healthcare that minimizes risks and harm to service users, including avoiding preventable injuries and reducing medical errors. How can it be effective? First, come to the safe. Let me explain it to you further. That वो सारी ट्रीटमेंट रिसोर्सेज और वो सब ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो कि पेशेंट की वेलफेयर के लिए पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए नेसेसरी हैं और वो सेफ भी हैं और उसके यू हैव टू गो थ्रू द risk benefit analysis. If the risks are lower and the benefits are more, you will go with this thing. ठीक है? And you will provide them with the treatment option which is having the less risk count as compared to the other which is having the more risk count and less benefit count. Okay, so you have to provide the safe delivery of the healthcare treatments. Next comes the effective, the component effective. Providing services based on the scientific knowledge and evidence-based guidelines. What would be the effective? In the evidence-based guideline, you have already studied it, that the effective treatment can be compared with other treatment by the randomized control trial. And how you can get these? By the evidence, by applying the evidence-based practice in your clinic for the patients. Or by just doing the research on the different treatments for its effectiveness, whether this treatment you are thinking to give to the patient is effective as the gold standard or you should go for the gold standard one. Okay. Timely, obviously, timely का क्या मतलब है? The component of timely describes that when the patient is needing this thing, you have to give that treatment on that level, on that time. If you are just delaying the time and not giving the patient on the spot treatment or the best time, जिस पे वो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, तो अल्टीमेटली होगा क्या? अल्टीमेटली ये होगा कि पेशेंट सेटिस्फैक्शन लूज करेंगे आप. You have the negative impact on the component of the patient satisfaction. It should be efficient. How it could be your treatment or the quality care be efficient? The delivering the healthcare in a manner that maximizes the resource use and avoids the waste. ठीक है, अब इसको हम फर्दर देखेंगे कि किस तरह से किया जाता है, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज किस तरह किया जाता है और अवॉइड कैसे किया जाता है वेस्ट को. बट ये ऑब्वियस बात है कि एथिकली भी ऐसे होना चाहिए कि हमें किसी भी रिसोर्सेज जो है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको एफिशिएंटली यूज करना चाहिए. तो एफिशिएंटली की टर्मिनोलॉजी में बेटर यूज ऑफ द रिसोर्सेज आता है कि आप उन रिसोर्सेज को कैसे यूज कर सकते हैं और कितने टाइम में यूज कर सकते हैं और जो है वो आपको इसको किस तरह से अल्टीमेटली इस्तेमाल करना चाहिए और वेस्ट नहीं करना चाहिए.
इक्विटेबल। पुराने दौर में इस तरह से होता था कि देयर वर सम फैक्टर्स जिनकी बेसिस पे इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता था, जैसे कि जेंडर बाइसनेस, the male members get the high level of the treatment or the seriousness about the illness as compared to female members in our just local areas, और इस तरह की बात कर रही हूँ। और इसके अलावा ये प्रॉफिट बेस्ड भी होता था। The ones who are having the political relationships, who are having the some other kind of relationship or the some personal relationship with the doctor or the clinician are getting the better opportunities, are getting the better treatment options as compared to the ones who are not having the relationships, you know। और ये तो अभी भी फॉलो किया जाता है। या फिर एथनिसिटी की बेसिस पे, जैसे ब्लैक्स वर ऑलवेज इन द लॉस ऑफ ऑन देयर एथनिसिटी बेसिस पे, जो ब्लैक वर्स थे और जो एशियन वंस हैं उनको एज कम्पेयर टू द यूरोपियन वंस जो है वो लेस प्रायोरिटी दी जाती है हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स के अंदर। ये डिपेंड कर रहा है कि आप किस लोकेलिटी में हैं और किस रीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो अब ये है कि एक इक्वलाइजेशन होनी चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, एथनिसिटी, रिलीजन और सम अदर जो है वो फैक्टर। ठीक है, इन सब चीजों को, जियोग्राफिकल लोकेशंस और द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, इन सब चीजों को ताक में लाते हुए सिर्फ और सिर्फ बीइंग ह्यूमैनिटी की बेसिस पे आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना चाहिए और सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए। ठीक है, पीपल सेंटर्ड और द पेशेंट सेंटर्ड। व्हाट इज मेंट बाय द पीपल सेंटर्ड? हम बहुत दफा ये बात कर चुके हैं। द पेशेंट प्रेफरेंस इज द मोस्ट प्रायर थिंग इन ऑल काइंड ऑफ द ट्रीटमेंट्स। कि आपको जो है वो पेशेंट को प्रेफरेंस देनी है। यू हैव टू इन्फॉर्म द होल ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट एंड देन आस्क फ्रॉम द पेशेंट दैट व्हाट इज हिज और हर प्रेफरेंस, और उसकी बेसिस पे आपको अपना ट्रीटमेंट और अपना प्लान डिवाइस करना है। So giving the providing the care that takes into account the preference and aspirations of the individual service users and the culture of the community is really important to get the better healthcare in the community and getting the better patient satisfaction from them. Do I have any question till now? No, ma'am. No, ma'am. Is it clear to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, here now comes some defects in the quality care. We can say them the components which go for the negative role in the quality care or the defects in the quality care. They are the underuse, overuse, and misuse. They are too simple in their terminology. What do you mean by underuse? Can you suggest me what do you mean by underuse of something? Is my voice clear to you all? Yes, ma'am. बीच में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी लेकिन फिर ठीक हो जाती है। Okay, hopefully my voice is clear to all. I'm just asking you that what the underuse is. मैम अंडर यूज में ये हो सकता है कि जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज हैं उनको हम उस तरह यूज नहीं कर रहे जितना हमें करना चाहिए, हम कम यूज कर रहे हैं। Exactly. जो हमारे पास ट्रीटमेंट फैसिलिटीज हैं उनको हम कम यूज कर रहे हैं, उनको हम प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहे हैं या अपनी नेग्लिजेंस की वजह से हम उन पे कम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ये सब आती हैं आपकी अंडर यूज के अंदर। व्हाट डू यू मीन बाय द ओवर यूज? मैम किसी चीज को बहुत ज्यादा यूज कर लेना, जैसे ये हॉस्पिटल में हमारा एसपी वहाँ पे हॉट पैक को कुछ ज्यादा ही यूज करते हैं, उसकी इतनी जरूरत है भी नहीं, जहाँ पे नहीं भी जरूरत भी यूज कर लेते हैं। Exactly. This is the nice example that infrared hot packs और इस किस्म की जो मोडालिटीज हैं इलेक्ट्रोथेरेपी की, जिनको अब ऑब्सोलीट, हॉट पैक तो खैर ऑब्सोलीट नहीं किया गया, बट द इंफ्रारेड और द शॉर्ट वेव डायथर्मी फॉर सम conditions it has been obsoleted from the treatment, from the evidence that it has this positive effect. Otherwise the healing जो जिनमें healing का component शामिल होता है जिनके effectiveness में, उनको ज्यादा यूज किया जाता है। For instance the ultrasounds and the other therapies, electrotherapy modalities। ठीक है, तो ओवर यूज क्या है कि आप उन चीजों को एलिमिनेट ना कर पाए जिनकी अब जरूरत नहीं है। फॉर इंस्टेंस द इंफ्रारेड, द अल्ट्रासाउंड और द सीटी स्कैन, एमआरआई। एक चीज की डायग्नोसिस के लिए आपको सीटी स्कैन और एमआरआई की जरूरत नहीं है। आपने क्लिनिकल डायग्नोसिस, इतना ऑब्वियस है कि आपने वो बना लिया है क्लिनिकल डायग्नोसिस, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, टू जस्ट गेट द बेनिफिट फ्रॉम द फाइनेंशियल बेनिफिट और द और some your personal reflex
कि आप इनके बगैर चलते नहीं हैं और आप इनको अपने आप को अकोमोडेट नहीं करते हैं, ऑप्ट नहीं करते हैं न्यू मेथड्स को, तो आप क्या कर रहे हैं, आप ओवर यूज कर रहे हैं किसी भी फैसिलिटी का। नेक्स्ट कम टू मिस यूज। मिस यूज क्या है कि हाँ जी, कोई एक्सप्लेन करेगा? जी नुमान। मिस यूज में मैम ये है कि हम उसको प्रॉपरली केयर नहीं प्रोवाइड कर रहे, गलत केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, डायग्नोज गलत किया हुआ है और प्लान ऑफ केयर हमारा गलत है। एग्जैक्टली मिसयूज ये होगा कि हमारे पास एक डायग्नोस्टिक टूल है जो कि किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर इंस्टेंस एंग्जाइटी टूल है जो कि एंग्जाइटी के लिए इस्तेमाल होता है, बट यू आर इवेलुएटिंग द डिप्रेशन फ्रॉम दैट टूल। दिस इज द मिस यूज ऑफ समथिंग, ठीक है? दैट वाज फॉर द एंग्जाइटी बट यू आर यूजिंग इट फॉर द डिप्रेशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन इफ यू हैव गॉन थ्रू द बिहेवियर साइंसेस। मैम जैसे ये जो होते हैं, जैसे हमारे लैब के होते हैं टेस्ट, कुछ डॉक्टर जानबूझ के भी करवाते हैं, उनकी जरूरत नहीं भी होती, वो भी इसी में आएगा? वो ओवर यूज में आएगा। दैट विल कम अंडर द ओवर यूज, नॉट द मिस यूज। ओके Okay. In other words, quality may be defined as the degree to which a healthcare organization increases the likelihood of desired health outcomes consistent with current evidence about the scientific, interpersonal, organizational components of the healthcare. Okay. So, on all the levels, the quality depends upon the integration of all the levels, which are what happens to the patient. I'm just stopping the audio as someone is passing by. Okay, Ji. So, what are the different levels on which basis we can tell that the on which levels the quality depends upon? It depends upon what happens to the patient. Problem kya hai? You first go through the problem, the proper history of the patient, the care delivered by the healthcare provider team. What type of the care the healthcare team is getting provided, and the organization's management and coordination of all of its units, the external environment where the regulations and policies are made. So these are the 4 levels on which the quality of care depends upon basically. इन सब लेवल्स के ऊपर क्वालिटी ऑफ केयर डिपेंड कर रही है, और इन सब की असेसमेंट भी जरूरी है, और इन सब की रिव्यू जो है वो भी जरूरी है कि इसको बार बार देखा जाए। एंड व्हेन यू आर गेटिंग अ प्रॉब्लम समवेयर, यू शुड टैकल दिस कि प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है, उसकी प्रॉपर असेसमेंट होनी चाहिए। सो हाउ कैन वी असेस द क्वालिटी इन हेल्थ केयर? Measuring the quality of care poses some challenges due to the limited number of outcomes that are measurable. Furthermore, due to the strict regulations placed on health services, research data sources are not always complete. So, what is the model or the framework for assessing the healthcare quality? And identifies 3 domains are really important to assess the quality in the healthcare. Those are the structures. Are the structures properly provided? The process, is there any difficulty in the process of giving the healthcare? And the outcomes, on which outcomes you are measuring the healthcare basically. So structure measures describe the provider's ability to provide high quality care. अब इसमें आपकी सब डिवाइसेस भी आ जाती हैं, इनमें आपकी लैब्स भी आ जाती हैं कि किस टाइप की फैसिलिटीज आप अवॉइड करें, इसमें रिसोर्सेज भी आ जाते हैं। प्रोसेस में क्या आता है? measures the action that taken to maintain or improve the community health. The outcome measures describe the impact of the healthcare intervention. So ये तीनों चीजें हैं जो कि आप डिवाइस करती हैं कि किस तरह से क्वालिटी जो है वो आप मेंटेन कर रहे हैं हेल्थ केयर सिस्टम की। प्रोसेस मेजर में आपके पास आएगा कॉस्ट एफिशिएंसी। Cost effectiveness determine whether the benefit of a service exceeds the cost incurred to provide the service. So हमेशा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है कि कितना, क्या ये चीज, क्या ये रिसोर्स, क्या ये सर्विस, इतनी जितनी इसमें कॉस्ट लग रही है इतना बेनिफिट भी प्रोवाइड कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि कॉस्ट इंक्रीज कर रही है और बेनिफिट कम है। हाँ, ये चल सकता है कि बेनिफिट ज्यादा हो और इसकी कॉस्ट कम हो, तो हम हमेशा लेस कॉस्ट की तरफ जा रहे होते हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि हम रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि उसकी उस सर्विस की इतनी जरूरत ही नहीं है और हमने उसको रखा हुआ है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जबकि उसके बगैर भी काम चल सकता है, ठीक है। सो दिस इज द कॉस्ट एफिशिएंसी।
Consequently, depriving someone else the potential benefit from obtaining the service. Cost और its risk, cost and risk analysis की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखा जाता है कि जो यूटिलाइजेशन है वो अंडर यूटिलाइजेशन तो नहीं है, ओवर यूटिलाइजेशन तो नहीं है, और मिस यूज, इन तीनों चीजों की बेसिस पे देखा जाता है कि उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है और उस पर कितनी कॉस्ट जो है वो लग रही है। Critical pathways are the outcome-based and the patient-centered case management tools that take on the interdisciplinary approach by the facilitating coordination of care among multiple clinical departments and the caregivers. Basically, what is this? These comes under the processes that the coordination should be better. From all the departments or all the units of the healthcare providers कि वो उस patient को जगह जगह मारा मारा ना फिरना पड़े, जैसे कि मोस्टली गवर्नमेंट सेटअप्स में होता है कि उनकी कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन बहुत लो होती है और उस सारे चक्कर में पेशेंट सेटिस्फैक्शन जो है वो डाउन हो जाती है और पेशेंट को ज्यादा घूमना फिरना पड़ता है, पेशेंट को जो है वो खवार होना पड़ता है। Are you hearing me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Healthcare manager utilize the, but my video would not be clear because of the light issue. Okay. You have to do a presentation for this thing. Okay. Healthcare managers utilize the critical pathways as a method to reduce the variation in care, decrease the resource utilization, and improve the quality of care. Using critical pathways to reduce cost and errors, improve the quality by providing a systematic approach to assessing healthcare outcomes. So when we go for the critical pathways and we discover that where the coordination is being lacking and where the communication is not the part of the way, तो हम क्या कर सकते हैं, हम improve कर सकते हैं quality care को by tackling the difficulties in this whole pathway. Clinical practice guidelines. They are the, you can say, the heavens for us. Clinical practice guidelines ने, उन protocols ने clinician के लिए इतना आसान कर दिया है standard को meet करना और एक efficiency को show करना कि अगर आपके पास clinical practice guidelines हैं और ये आपको कब मिलती हैं, when you go with the evidence-based phenomena or the evidence-based procedure. इस सब के थ्रू आप देखते क्या हैं, आप देखते हैं कि क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैं क्या, उनको सर्च आउट करते हैं और जब आप पेशेंट को ये प्रोवाइड करते हैं तो आप एक स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके लिए आपको कॉस्ट और इफेक्टिव बैलेंस और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होती। यू ऑलवेज नो कि ये लेस कॉस्ट कर रहा है और ये हाईली इफेक्टिव है, तो आपके लिए आधा काम आसान हो जाता है जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे होते हैं। और इसमें इक्वलाइजेशन का फिनोमेना जो है वो भी आ जाता है। तो आप क्या करते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस को फॉलो करके कि आप टाइमली डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट को आप इक्विटेबल मैनर में उसको डिलीवर कर रहे हैं और आप इफेक्टिव मैनर में डिलीवर कर रहे हैं। तो जो 3 कंपोनेंट थे क्वालिटी केयर के, वो तो क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस और टाइमली, ठीक है, तो आप तो 3 से 4 आपके कंपोनेंट्स हैं क्वालिटी केयर के, वो तो आप ऑलरेडी फुलफिल कर रहे हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस को यूज करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द टेक्निकल परफॉर्मेंस is the extent to which a health professional conformed to the best practices established by the medical guidelines. Technical performance is judged from the quality perspective without the regard of the actual outcomes. So for example, इसकी example वो दे रहे हैं, if a physician gives care according to the guidelines but a patient's health does not improve, then by this measure the quality of the technical performance is still high. क्यों technical performance high है? क्योंकि आप CPGs को यूज कर रहे हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस को यूज कर रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी को और टेक्नोलॉजी को बेटर यूज कर रहे हैं, आप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को यूज कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर ये करना है कि अगर पेशेंट की हेल्थ इंप्रूव नहीं हो रही है तो आपको क्यूमुलेटिव और एडजंक्ट थेरेपीज को देखना है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और गॉड फॉरबिड फिर भी इंप्रूव नहीं हो रही है तो आपके पास जस्टिफिकेशन है कि आपने स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट को यूज किया है, फॉर द मोस्ट इन अल्लाह's हैंड, ठीक है, और द नेचर्स हैंड। यस, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, टेक्नोलॉजी को किस तरह से आप टैकल कर सकते हैं? It's in the perception of the healthcare quality that there was a survey which was done in the 2015 which told that of the positive attitude towards the health information tools. अगर आप एक पेशेंट को उसकी टेक्नोलॉजिकली उसको बता रहे हैं और टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए एक पेशेंट को फर्दर इंफॉर्मेशन है थ्रू द वाउचर्स, थ्रू द पम्पलेट्स और थ्रू अदर
मीडिया रिसोर्सेज, अगर उसको इस बात का अच्छे से अंदाजा है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है और इसकी प्रेजेंटेशंस क्या क्या होती हैं, तरीके से जो है वो टैकल किया जाता है, इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, तो उन लोगों ने जिनको ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, जिन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज किया हुआ था और जिन्होंने ये सब मैटर्स यूज किए हुए थे, उनका ज्यादा पॉजिटिव रिएक्शन था कंप्लायंस में भी और ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस में भी, एज कम्पेयर टू दोस्त जिनको इस बारे में बिल्कुल भी एम नहीं था। इसकी बहुत कॉमन एग्जाम्पल आप ले सकते हैं पोलियो के मामले में। वो लोग जिनको नो हाउ है कि पोलियो है क्या, पोलियो की वैक्सीनेशन किस तरह से होती है और इसके क्या इफेक्ट होंगे और इसके क्या बेनिफिट्स होंगे उनके बच्चों को, दे आर गेटिंग द मोर कंप्लायंस and they are obviously having the proper vaccinations to their kids and they are more preventive towards the preventive side of the polio disease. But the ones who are not getting awareness of this, who are lacking the information about this, उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं कि वो इस बीमारी में ज्यादा लाहक हो जाते हैं क्योंकि वो उनको प्रॉपरली टेक्नोलॉजिकली ट्रीट नहीं किया जाता है, उनको अवेयरनेस नहीं प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, नाउ कम्स द आउटकम मेजर। ओके, आउटकम मेजर्स हमारे क्या हो सकते हैं? इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम देख रहे हैं कि पेशेंट के गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स पूरे हुए हैं या नहीं, तो इसे आप कहते हैं माइक्रो लेवल असेसमेंट। माइक्रो लेवल असेसमेंट में क्या आती है कि एक पेशेंट के जो गोल्स थे वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए और उसके आउटकम मेजर्स बेस कर रहे होते हैं कि वो आपने आउटकम मेजर्स पहले से डिवाइस किए होते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन, और फिर आप उसको मेजर कर रहे होते हैं कि पेशेंट को बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। इन द मैक्रो लेवल आप पूरे क्वालिटी सिस्टम की और पूरी डिजीज को ओवरऑल द इंसिडेंस, ओवरऑल द पॉपुलेशन मेजर कर रहे होते हैं मैक्रो लेवल पे कि इसका इंसिडेंस कैसा है, इसके आउटकम मेजर्स कैसे हैं और वो किस चीज में आते हैं, मोर्टेलिटी रेट में आते हैं, वो इंसिडेंस रेट में आते हैं, प्रेवलेंस रेट में आते हैं। इन रेट, ये रेट्स होते हैं जो कि आउटकम मेजर होते हैं पूरी पॉपुलेशन के लिए और इसे मैक्रो लेवल असेसमेंट कहते हैं। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है, दे कैन आस्क मी। नो मैम, ये स्लाइड की वर्डिंग है, यानी कि वो समझ आ रही है कि एक बार दोबारा पढ़ेंगे ज्यादा अच्छा हम वो कर लेंगे, याद कर लेंगे इसको। आपको क्लियर हो रही है सारी बात, कोई कॉन्सेप्ट? यस मैम, बिल्कुल क्लियर है। ओके, फिर इजी आज का पहले की निस्बत। ओके, अब हम जाते हैं पेशेंट के पर्सपेक्टिव की तरफ। ठीक है, पेशेंट के पर्सपेक्टिव में क्वालिटी केयर क्या है? पेशेंट सेटिस्फैक्शन सर्वेज यूज होते हैं पेशेंट का पर्सपेक्टिव और पेशेंट की सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए, और ये क्वालिटेटिव मेजर होती है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये सब्जेक्टिव मेजर है, क्योंकि इस बारे में आपको पेशेंट बता रहा है। ठीक है, पेशेंट वन, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? गुड क्या है? गुड ये है कि हमें पेशेंट का पर्सपेक्टिव पता चलता है इसमें। ठीक है, कि पेशेंट किन चीजों को ज्यादा जो है वो प्रायोरिटी दे रहा है, उसके लिए क्लीनलीनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या द मोर एजुकेटेड क्लिनिशियन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए वो किस चीज को प्रायोरिटी दे रहा है, स्टाफ मेंबर्स का क्या रवैया था, ये एक क्रॉस चेक है। ठीक है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज कहाँ है? अगर हम सिर्फ पेशेंट पर्सपेक्टिव को रखते हुए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी केयर या हेल्थ केयर सिस्टम की क्वालिटी को मेजर करने लग जाएंगे तो होगा क्या? होगा ये कि हम सिर्फ पेशेंट पर्सपेक्टिव देख रहे हैं और उसके पास क्लिनिकल जजमेंट नहीं है। The patient doesn't know about the disease. The patient doesn't know about the standard treatment. The patient doesn't know about the misuse, overuse or the disuse perspective. ठीक है, ये क्लिनिशियन की जजमेंट है, ये क्लिनिशियन जानता है, पेशेंट नहीं जानता। पेशेंट क्या बताएगा? अपना पर्सपेक्टिव बताएगा, वो जो कि एक सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पेशेंट पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट नहीं है, पेशेंट पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन सिर्फ पेशेंट पर्सपेक्टिव के बेसिस पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को जज करना गलत होगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द स्लाइड, ये इसमें यही एक्सप्लेन किया गया है। पेशेंट सेटिस्फैक्शन जो है वो पेशेंट की इन्वॉल्वमेंट पे भी डिपेंड करती है कि आपने पेशेंट किन किन फैक्टर्स पे इन्वॉल्व कर रही होती है, पेशेंट का क्या रहा है, कैसा बिहेवियर रहा है जो विद द हॉस्पिटल, विद द क्लिनिशियन, उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, मल्टीपल यूनिट्स के साथ, जो भी उसको उस हेल्थ केयर जिसके लिए वो, जिस मकसद के लिए वो गया था उन सबके लिए। और थर्ड कि पेशेंट को कितना इन्वॉल्व किया गया उसके ट्रीटमेंट प्लान के अंदर बाय द क्लिनिशियन। अब इसमें अगेन वो वाला पर्सपेक्टिव आता है पेशेंट का, पेशेंट प्रेफरेंस, ये वहां पे वो कंपोनेंट यहाँ कवर हो रहा है। क्या पेशेंट को उस पूरा इन्फॉर्म किया गया था उसके डिजीज के बारे में, पेशेंट को पूरा एजुकेट किया गया था और फिर क्या उससे फीडबैक लिया गया कि उसकी प्रेफरेंस क्या है, क्या उसने चूज किया अपना ट्रीटमेंट या उस पर थोपा गया है बाय द क्लिनिशियन। ठीक है, तो ये भी उसमें इन्वॉल्व हो रहा है पेशेंट की सेटिस्फैक्शन में।
There are the two key aspects of the patient satisfaction, which may be represented on a continuum anchored with the content quality and the service delivery quality. तो हम पेशेंट की सेटिस्फैक्शन को कॉन्टिन्यूम के अकॉर्डिंग दो एक्सट्रीम्स पे जो है वो मेजर कर रहे होते हैं। एक होता है कंटेंट क्वालिटी और दूसरा है सर्विस डिलीवरी क्वालिटी। कंटेंट क्वालिटी क्या है कि क्या उसको जो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड था उसका कंटेंट पूरा किया गया है, उसे हर वो सर्विस प्रोवाइड की गई है जो उसकी जरूरत थी, उसे वो इन्फॉर्मेशन दी गई है, सारे कंटेंट को पूरा किया गया है या नहीं किया गया, स्टेप बाय स्टेप। दूसरा क्या आता है? ओके, दूसरा आता है हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर में हमारे पास क्या आएगा? सर्विस प्रोवाइडर में हमारे पास आएगा कि आया जो सर्विसेज हम उसे प्रोवाइड करने जा रहे हैं उनकी डिलीवरी प्रॉपर थी या नहीं थी। अब इसका क्या मतलब है? इसमें आती है आपकी लोअर टीम, ठीक है, थर्ड लेवल टीम आती है आपकी। क्या वो सारी टीम जो थी वो पेशेंट के साथ वो थी, क्या कह सकते हैं उसे, कि वो कंप्लायंस शो कर रही थी पेशेंट के साथ, वो एफिशिएंट थी पेशेंट के साथ, वो प्रॉपर गाइड कर रही थी, क्या वो फ्रेंडली थी पेशेंट के साथ और उनका बिहेवियर कैसा था, ये सब आते हैं। ऑल पेशेंट केयर इंक्लूड्स द बोथ कंपोनेंट ऑफ द सर्विसेज, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूम में ये दो चीजें जो है वो पूरी हो रही हैं। But depending upon their circumstances, patient may perceive that the received technical excellence and the clinical expertise, if these components of the care are more important to them. ठीक है। Other patients may perceive that the care is a humane and culturally appropriate if that is what they value. So again, जो पेशेंट की तरफ से आपको परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मिलेगी या जो पेशेंट की तरफ से आपको इवैल्यूएशन का परफॉर्मा फिल हुआ वो मिलेगा, वो पेशेंट का पर्सपेक्टिव होगा। और पेशेंट के पर्सपेक्टिव दोनों तरह से हो सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर में भी हो सकते हैं और टेक्नोलॉजिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। Quality content depends upon the performance evaluation, staff development as the new approaches and technologies जो है कि वो evidence based में आ रही हैं, वो उनको यूज कर रहे हैं या नहीं, compliance show कर रहा है या नहीं, patient satisfaction with the service delivery component depends upon the managers having process that meet the patient expectation for the convenience and timeliness. The development of the strong interpersonal relationships from the direct caregivers and the non-clinical support staff, जो भी होता है उसके साथ उसका रिलेशनशिप कैसा जा रहा है। यहां तक हम क्लियर है बेटे? मैम एक क्वेश्चन था मेरा। यस नमान। मैम प्रीवियसली आपने कुछ स्लाइड्स पहले आपने पेशेंट प्रेफरेंस में उसमें एक पॉइंट बताया था कि पेशेंट की फीडबैक पूरे हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट को जज नहीं करवा सकती, लेकिन अक्सर देखा जाता है या कहा भी जाता है कि जो पेशेंट फीडबैक होती है उसी के ऊपर इवेलुएट किया जाता है कि उसकी कितने फीडबैक पॉइंट है उसकी और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी प्रॉपर फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही। ओके, देयर इज ऑलवेज अ प्रोपोर्शन ऑफ ईच असेसमेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेशेंट सेटिस्फैक्शन या पेशेंट का जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है उसके थ्रू ही एक ऑर्गेनाइजेशन की को जज किया जाता है या उसकी जजमेंट बनाई जाती है। एग्जैक्टली मैम एक चीज ऐड करूँ, समटाइम पेशेंट को भले ही किसी ने बताया होता है कि ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, तो उसकी परसीव यानी उसकी परसेप्शन पहले ही उस हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग अच्छी हुई होती है, तो उसके को गोल्स तो या वो जब वो परफॉर्मा फिल करेगा तो वो कहेगा ही कि ये तो हॉस्पिटल ऑलरेडी अच्छा है, चाहे उसको इतनी ज्यादा ट्रीटमेंट ना भी अच्छी मिली हो फिर भी, क्योंकि उसने लोगों से सुना होता है कि उसकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है। एग्जैक्टली। सो नुमान, जो आपका क्वेश्चन था कि पेशेंट से ही पूछा जाता है, वो आपको इसलिए पता है कि शायद आपने हॉस्पिटल सिर्फ पेशेंट बीइंग अ पेशेंट ही विजिट किया है, ठीक है। आप उन पॉलिसी मेकर्स में और उन जजिंग अथॉरिटीज में शायद उनके पर्सपेक्टिव से आपने कभी नहीं देखा। दे डोंट जज ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस बाय ओनली सिंगल पर्सपेक्टिव, दे गेट थ्रू देयर आर द सर्वेज। आपने QEC का नाम सुना होगा। There is a department which is called the QEC, Quality Enhancement Cell. The people who are in the Quality Enhancement Cell, they get the information, वो क्वालिटी को ही कंट्रोल कर रहे होते हैं और वो ये सारे सर्वेस कंडक्ट कराते हैं और वो सब पर्सपेक्टिव्स में कराते हैं। वो क्लिनिशियन के पर्सपेक्टिव में भी कराते हैं, वो हाई लेवल मैनेजर के पर्सपेक्टिव में भी कराते हैं और वो पेशेंट के पर्सपेक्टिव में भी कराते हैं, और इन सब को कॉम्बिनेशन बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन की रैंकिंग क्या है। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस को रैंक करते हैं ना, ये जो रैंकिंग सिस्टम होते हैं, WHO की जो क्वालिटी एनहांसमेंट, जो क्वालिटी इवैल्यूएटिव जो विजिट्स होते हैं, वो भी इन सब के बेसिस पे होते हैं। ये कभी भी सिंगल पर्सपेक्टिव नहीं होता, ठीक है ना, ही सिंगल पर्सपेक्टिव। मैम एक चीज है, ये जो स्टैंडर्डाइज चीज है, फॉर एग्जांपल कि अगर WHO ने एक हॉस्पिटल है पाकिस्तान में, एक हॉस्पिटल है शौकत खाना में या कोई भी है प्राइवेट हॉस्पिटल, एक स्टैंडर्डाइज उन्होंने कहा हुआ है कि आपको ये मशीन्स आपको रखनी चाहिए, ये SOPs आपको फॉलो करनी चाहिए और ये
आपको ये मेथड्स हैं जिनके ऊपर आपने चलना है। तो अगर ये कोई भी हॉस्पिटल इसको फॉलो करता है ना, तो वो स्टैंडर्डाइज हो जाएगा और वो WHO की रैंकिंग में आ जाएगा। लेकिन क्या वो वही प्रॉपर ट्रीटमेंट पेशेंट को लिहाज से दे रहा है कि खाली SOPs ही फॉलो की जा रही हैं? ये दोनों अलग अलग चीजें कि एक ही चीज है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके, अगर WHO किसी को अपनी रैंकिंग में वो से आप कहना ये चाह रहे हैं, मेरा ख्याल अनुमान आपके, उसे एफिलिएशन मिलती है या नहीं WHO से, ठीक है? मैम एक पॉइंट मैं भी बताऊं मैम, वो तो फिर फैकल्टी पे डिपेंड कर रहा होता है। जो इंटरनल पर्सन है वो फिर पर्सनलाइज मैनेजर जो मैनेज कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे मैनेज करता है। उस स्टैंडर्ड वैल्यूज को तो वो फुलफिल कर देता है, लेकिन इंटरनली वो उसकी असेसमेंट कैसे करता है, वो अपनी फैकल्टी यानी स्टाफ को कैसे लेके चल रहा है, पेशेंट के साथ पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच क्या है उसकी, वो डिफरेंट वेरी करता है कि वो इंटरनली कैसे उस प्रोसेस को चला रहे हैं। ओके, हम इसको टर्न बाय टर्न करते हैं, ठीक है? हम कि हमने अभी सबसे पहले पढ़ा था स्ट्रक्चर। अभी मैंने आपको बताया कि 3 कंपोनेंट्स है जिस पे क्वालिटी जो है वो मेजर की जाती है। तो फर्स्ट है स्ट्रक्चर। WHO जब रैंक कर रहा होता है, WHO जब किसी को एफिलिएशन देता है तो वो देता है सबसे पहले स्ट्रक्चर। जो आप बात कर रहे हैं कि उसने ये मशीनें रखी हुई हैं या नहीं, ये स्ट्रक्चर ऐसा है या नहीं, कितने बेडेड हॉस्पिटल है, एक डिपार्टमेंट में कितने बेड्स हैं, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, दिस इज इट कम्स अंडर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट कम दी प्रोसेस। प्रोसेस में वो सब चीजें आती हैं जो कि इन यूनिट्स के प्रोसेसेस को लेके चल रही हैं, वो सारे प्रोसेसेस जिनके थ्रू डिलीवरी की जा रही है, जिनके थ्रू वो डिलीवर किया जा रहा है टू द कंज्यूमर, टू द पेशेंट, उस सब की असेसमेंट अलग होती है। फिर थर्ड पे आता है पेशेंट पर्सपेक्टिव। वहां पे पेशेंट से एनालिसिस करवाया जाता है कि वो क्या समझ रहा है। जब ये तीनों चीजें पूरी होती हैं तो फिर एक हॉस्पिटल की रैंकिंग बनाई जाती है। किसी हॉस्पिटल का WHO रैंकिंग लिस्ट में आना और उस रैंकिंग लिस्ट में फर्स्ट 3 में आना दो अलग अलग बातें। यस मैम, ये तो है कि फर्स्ट 3 में आना और उस लिस्ट में आना, लेकिन इसके पीछे वो भी तो है ना, बोर्ड भी बैठा हुआ है, सारी चीजें। मैं ये पूछा था कि उनका भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें या खाली ये है कि बस ऑब्वियसली बेटा, आपका जो हर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल क्वालिटी एनहांसमेंट सेल होता है, वो इंटरनली क्वालिटी को एनहांस कर रहे होते हैं और उसको चेक एंड बैलेंस रख रहे होते हैं। फिर आपके कुछ टाइम ड्यूरेशंस के बाद WHO की तरफ से विजिट्स किए जाते हैं या PMDC की तरफ से विजिट्स किए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इवैल्यूएशन के लिए और उसकी क्वालिटी चेक के लिए। जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा कि HEC के विजिट होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, वो इस तरह से ही होते हैं कि हर कुछ अरसे के बाद होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि यूनिवर्सिटी में एक दफा हो गया और फिर खत्म, ऐसा तो नहीं होता। हर कुछ अरसे के बाद होते हैं। वो किस लिए होते हैं? टू इवैल्यूएट द क्वालिटी, ठीक है? और उसमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स आते हैं जिनके थ्रू अल्टीमेट क्वालिटी चेक हो रही होती है। ठीक है मैम, यानी कि खाली पेशेंट के ऊपर नहीं है, 3-4 चीजें कंबाइन है जिनके ऊपर वैल्यूएशन होके फिर उसको बताया जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन टिल नाउ? नो मैम। नो मैम। ओके, सो बेटा आई एम जस्ट एंडिंग द कॉल नाउ। हमारा मटीरियल आज का कवर हो चुका है, यहाँ तक ही था। इंशाल्लाह ताला अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो यू कैन आस्क मी इन द थ्रेड। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। हम इंशाल्लाह ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके मैम। मैम चलिए।